today we are going to do two similar topics for the day. Okay. Number one is yes, we're going to do error identification and sentence improvement. Okay. Okay. So IBA के test में these two topics are part of the syllabus. Okay, and these two topics and the closed passage, they are very similar topics because in तीनों में आपको जो है ना, the main purpose is to find the most suitable option according to the passage or the sentence. इसमें तो sentences की बात होती है, लेकिन जो closed passage होता है उसमें आपने देखा होगा कि अक्सर आपको लग रहा होता है more than one right answers है, but उसमें एक ही right answer होता है according to the passage. ठीक है, so इसलिए जो है ना error identification, sentence improvement and closed passages are very similar topics, but इसका जो है ना error identification का तरीका of asking the question is very different, वो हम देखेंगे. But first you're going to do sentence improvement. ठीक है, the first topic for today is sentence improvement, and these are the questions that we're going to practice. इसमें there is no theory या ये कि जो है ना आपको इसमें कुछ समझाना होता है या कुछ, इसमें it's mostly practice, and ये आपके mostly grammar और punctuation और modifiers, almost all concepts जो हमने क्लास में आपने मेरे साथ और अलीना के साथ किए उन दोनों के हिसाब से होते हैं. ठीक है, ignore the numbering for these one, वो messed up हुई है. We're going to do questions of these. पहले हम sentence improvement के questions करेंगे. These are sentence improvement के questions, and then we are going to do sentence errors. Okay, so moving on to the first one. Say, when it was feared that the serfs might go far too and gain their freedom for serfdom, the Protestants leader joined the process at crushing them. What do you guys think? इसका आंसर क्या होना चाहिए? At crushing होना चाहिए, into crushing होना चाहिए, in crushing होना चाहिए या without crushing होना चाहिए? What should be the answer? C. Okay. Okay. Read the question. The question says, when it was feared that the serfs might go too far and gain their freedom from serfdom, what is happening is that serfs are some people, okay, and they have to gain their freedom. Okay, so जो Protestant leaders हैं, they joined hand with the princess to crush them because they knew that the serfs might go too far. Do you get what I mean now? Serfs are people and they wanted freedom from serfdom. So the leaders हैं, they join hands with the princess ताकि वो serfs को crush कर सकें. ठीक है? So C cannot be the answer. Reread the sentence and see if it makes sense. In crushing them. B is the right answer. Why? Let's see. The question is, the sentence is saying, when it was feared that the serfs might go too far and gain their freedom from serfdom. Okay, so what they're saying over here is serfs hote kya hai basically? Serfs are ke जैसे basically medieval Europe में जो है ना, जब एक farmer को एक plot में बाउंड कर दिया जाता था ना, तो बेसिकली फार्मर और उसकी राइट्स के हिसाब की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि जब ये डर लगा था कि सर्फ जो है वो बहुत जो मतलब बहुत वायलेंट या बहुत ज्यादा करने लगेंगे टू गेन द फ्रीडम फ्रॉम सर्फडम. ठीक है, जो प्रोटेस्ट दीज आर कॉमन फार्मर्स, जो प्रोटेस्टेंट लीडर्स है ना, उन्होंने दे जॉइन हैंड्स विद द प्रिंसेस टू क्रश द सर्फ. ठीक है, सो अब डी तो सी तो आंसर हो नहीं सकता. अब इट कैन बी ए, बी और डी. अब एट क्रशिंग देम, इन टू क्रशिंग देम या इन क्रशिंग देम. इट्स ऑलवेज in crushing. Join the princess in crushing them. They joined the princess in crushing them. Into crushing them नहीं हो सकता, at crushing them भी नहीं हो सकता, because this makes the most sense out of all of these. Is this clear? Moving on, the second question says, the record for the biggest tiger hunt has not been met since 1911, when Lord Hardinge, the then Viceroy of India, shot a tiger that measured
11 feet and ये that होना चाहिए, that measured 11 feet and 6 inches. इसका आंसर क्या होना चाहिए? Yes, B is the right answer. देखो रिकॉर्ड ऑलरेडी, देखो किसी ने रिकॉर्ड ऑलरेडी सेट किया हुआ था, ठीक है, तो रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्ड को आप तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाते हो, तो कब इसका कभी भी मेट तो हो नहीं सकता, रिकॉर्ड को आप इम्प्रूव नहीं करते, यू सेट द रिकॉर्ड, बेटर इम्प्रूव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और रिकॉर्ड को मीट नहीं किया जाता, रिकॉर्ड को हमेशा ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. Moving on to question number 3, his powerful desire brought about his downfall. इसका क्या आना चाहिए? Okay, Amani says it should be C. Okay, बाकी सब कह रहे हैं कि B होना चाहिए. Amani is saying it should be C. Okay, Ashna is saying it should be A, and Amani is saying it should be B. C, and बाकी सब are saying B. ठीक है. Ashna, my question to you is, his intense desire brought about his downfall. Desire for what? What do you think? कि अगर मैं बोलती हूँ कि his intense desire brought about his downfall, desire for what? And Amani, his fatal desire. Fatal का मतलब होता है deadly. Desire for what? It makes a sentence incomplete if you use this and this. Why can it not be B or D? D का मतलब है यही रहेगा. His powerful desire. How, desire again for what? Powerful desire for what we don't know. देखो B makes the most sense कि उसको इतनी power की लालच थी कि that brought his downfall. सही है? So इसलिए B is the right answer. Moving on, will you kindly open the knot? देखो इसमें you can see कि इसमें हर तरह के सवाल हैं, synonyms, antonyms, grammar, suitable, जो भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है. Question I forgot the number. This question says, will you kindly open the knot? What will it be? Okay, there are loads of answers, C, B and A सब. Answer is A, because देखो यहाँ sentence improvement में errors में you need to see किसकी बात हो रही है, knot की बात हो रही है. You don't break the knot, you untie the knot. Okay, you untie a knot. You don't lose a knot. अच्छा, lose अगर होता ना तो will you kindly lose the knot नहीं होता. It would have been will you kindly loosen the knot. ठीक है, whoever said C. सो ये तो वैसे भी सेंस नहीं बना, ब्रेक अप नॉट को नहीं कर सकते, ओपन हो सकता है, बट इम्प्रूवमेंट सेंटेंस की बात हो रही है, सेंटेंस को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, तो इसलिए ए वुड बी द राइट आंसर बिकॉज यू ऑलवेज अंटायर अ नॉट. सही है. मूविंग ऑन, ही सेंट अ वर्ड टू मी दैट ही वुड बी कमिंग लेट. व्हाट वुड बी द राइट आंसर? अच्छा, you guys are saying B, but that is wrong. Guess the correct answer. चलो बताओ. No one's right अब तक. No, Library, you're not right as well. अब तो दो ही ऑप्शन रहेंगे. Obviously, A is the right answer. Why? Because you don't send a word. Basically, देखो, when I say ना, he sent word to me. इसका मतलब है कि he told me या he told me या he made me aware of it. Sending word का मतलब होता है किसी को कोई मैसेज पहुंचाना. ठीक है, you send word to someone, you send a message to someone. ठीक है, in English when you say sending word, it means sending a message, sending a message to someone. ठीक है, that is what send word means. Sending a word means sending word means sending a message to someone. सही है. The poor villagers have waited in the bitter cold for more than 4 hours now. इसका क्या होगा? What would be the correct answer? A is the correct answer. Why? Acha, tell me why is it not the other answers? बताओ मुझे.
एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर देखो नाउ की बात आ गई, नाउ का मतलब है सबसे पहले तो प्रेजेंट की बात आ गई, ठीक है, ये तो कट गया, ठीक है, ये कट गया। दूसरी बात, विलेजर्स एस की बात आ गई, ये तो हैज भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो आईएनजी आएगा, ठीक है, तो ए आंसर हो गया, ठीक है, सही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? all 19 of you, is it clear to all of you? मैं किसी से रैंडमली भी पूछ लूंगी, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो। इज इट क्लियर? आर यू गाइस श्योर? सिकंदर, इज इट क्लियर टू यू? दिस इज द फर्स्ट टाइम, हर क्लास में एक नया बंदा आता है। भूमिका, देविका, इज इट क्लियर? फातिमा, अब्दुल जब्बार, सबको क्लियर है? अब तक कोई सवाल है किसी को? एनी क्वेश्चंस? ग्रेट, मूविंग ऑन। द ओल्ड मैन, the old man felled some trees in the garden with hardly no effort. इसका क्या होगा? भूमिका, can you tell me इसका क्या हो? Okay, there is a D. Guys, when I say hardly no effort, what does this mean? And when I say hardly any effort, दोनों में difference क्या है? Exactly. This means little effort, yeah, something that was not difficult. This means कोई काम ही नहीं, कुछ मसला ही, कोई effort ही नहीं. But you can, this is not possible. Like आप अगर देखो, hardly, I studied with for my exam with hardly no effort. Hardly no effort is something contradicting कि आप बोल भी रहे हो कि effort था भी, then you saying there was no effort. So आपको दिखाना है, the impression here is कि बहुत कम effort था, तो उसने कहा हार्डली एनी एफर्ट, लाइक उसको बहुत कम मेहनत लगी, ठीक है, तो इसका, इसलिए जो है ना, इसका आंसर बी है। ए से नहीं हो सकता, हार्डली एनी एफर्ट ग्रामेटिकली रॉन्ग है, हार्ड एफर्ट का मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट है, तो हमारा या तो बी या तो डी आंसर होना था, और हार्डली नो एफर्ट इज नॉट ग्रामेटिकली, इज नॉट लैंग्वेज वाइज करेक्ट, इसलिए हम इसका कहेंगे हार्डली एनी एफर्ट, सही है। Moving on, the company goes to great length to ensure that employees can be comfortable in the work environment. इसका why not D? डी इसलिए नहीं अहमद, बिकॉज देखो हार्डली नो एफर्ट का मतलब होता है, देखो द ओल्ड मैन फेल्ड सम ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल, इसका मतलब है उसने, देखो नो एफर्ट का मतलब है बिल्कुल काम नहीं, लेकिन जब उसका आप हार्डली ज्वाइन कर देते हो तो उसका मतलब है आप ये भी कह रहे हो कि मुश्किल से कोई एफर्ट नहीं, लाइक दैट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, मैं बोलती हूँ हार्डली एनी एफर्ट, इसका मतलब है मुश्किल से कोई एफर्ट उसको हुई है, समझ आ रहा है? या तो एफर्ट हुई है या तो नहीं हुई है उनके बीच में, लेकिन मैं कह रही हूँ हार्डली नो एफर्ट, इसका मतलब है एफर्ट तो थी नहीं उसकी, नो एफर्ट का मतलब है बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं, लेकिन हार्डली नो एफर्ट वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, वी नीड टू शो कि थोड़ी एफर्ट थी, सही है। Moving on to question number, I don't know. The company goes to great length to ensure that employees can be comfortable in their work environment. Okay. A and C may have debate abhi tak. A, okay. A is clearly winning. Anyone else? A. Shakil, Shakil, aapne kहा na C. Why do you think it's C? Can you give me a reason? Why do you think it's C? Anyone else isko B or D mein lag raha? Because they are ensuring. Okay, chalo. The correct answer is A, but let's return to what Marvi and Shakil are saying. They're saying that option number C hona chahiye. Why can it not be C? C. Dekho, the company goes to great length to ensure that employees should be comfortable in their working environment. That is not the correct sentence. Agar mujhe should use karna hota na, Marvi and Shakil, I would have said the company believes that employees should be comfortable in their work environment. सही है?
should का मतलब है something that is a fact, something that has to be done. So यहाँ पे कोई action की बात हो रही है. अगर हमें should use करना होता, it would have been the company believes that the employees should be comfortable in the work environment. आप खुद इधर should use करके देखो and then use are. आपको कौन सा बेहतर लग रहा है? This question is from Marvi and Shakil. Use both of these and then tell me which option do you think is better. जब तक why can it not be B and D? Still I'm feeling C, ma'am. Okay. चलो देखो शकील, the read the line says the company goes. अच्छा मैं आपको कहती हूँ कि शकील makes sure that he should study on the last day. या ये is it better या मैं ये बोलूँ शकील makes sure that he studies on the last day. When you're talking about an action, when you're talking about something that is happening, आप उसमें should का लाने का sense नहीं बन रहा. Should is about the beliefs, about the fact, something that must happen, something जो किसी की belief के साथ जाती है. अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये बोल, अगर मुझे आपका जो मैंने example दिया about the studies, अगर मुझे उसमें should use करना होता, I would have said that Shakil believes that one should study on the last day. But should की बात हम करंट एक्शन में नहीं ला सकते ना. अगर मैं कह रही हूँ कि Shakil ensures that he should study on the last day. Shakil ensures that he studies on the last day. Does that make sense now? Or do you want more explanation? समझ आया आपको? अच्छा B और D क्यों नहीं हो सकते? देखो, the company goes to great length to ensure that the employees will be. इधर present है, इधर future है, contradiction आ गई, ठीक है? और जो no improvement वाला option है वो क्यों नहीं हो सकता? The company goes to great length to ensure that employees can be comfortable. Can be comfortable से better option है are comfortable. देखो, this is not about कि बिल्कुल सही आंसर कौन सा है. It's about किससे improve हो रहा है sentence. सही है? So improve हमारा R से हो रहा है. Question moving on. He had said so out of affection. Do not take it too hard. Which option should it be? A, B, C, or D? Okay, B, C, or D का option है. D is the correct answer. We always say English में कि do not take it too hard. I'm sure he does not mean that. Do not take it too hard. She is your mother. या anything. हम English में कहते हैं ना दिल पे मत लो. दिल पे मत लो कहते हैं ना उर्दू में. Sorry, उर्दू में कहते हैं दिल पे मत लो. Do not take it too hard. सही है? It cannot be in the दिल के अंदर नहीं लो. ये नहीं हो सकता. दिल by the heart का मतलब है दिल के अगर मैं by the heart को convert करूँ उर्दू में तो it means कि दिल से मत लो. यस आई थिंक दैट्स व्हाट इट मींस. ठीक है. और इन हार्ट का भी यही मतलब है कि दिल में मत लो. इट टू हार्ट का मतलब है दिल पे मत लो. ठीक है, समझ आया? सो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर. डज दैट मेक सेंस? किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके. द इंट्रूडर स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स. इसका क्या होगा? बी इज द राइट आंसर. परफेक्ट. फॉर अ फ्यू मोमेंट्स इससे नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे फ्यू से पहले हमेशा अ आता है. ठीक है, हमेशा अ आता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज अ आता है. ठीक है. फॉर द फ्यू मोमेंट्स नहीं हो सकता बिकॉज वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. फॉर फ्यू टाइम इज नॉट करेक्ट ग्रामेटिकली. सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा. ठीक है, मूविंग ऑन. आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू हिम सिंस माय फादर हैड डाइड. इसका क्या होगा? यस. एनी मोर ऑप्शंस? यस, ए इज द राइट आंसर. इजी. इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. स्टिल I have not I have not written any letter to him since my father was dead. यहाँ पे this does not make sense because देखो grammar because sentence की logic भी एक चीज होती है ना, वो नहीं बदली यहाँ पे. I have not written a letter to him since my father has died. Has का यहाँ पे कोई हमें मतलब नहीं लग रहा. Died alone makes the most sense, right? तो इससे जो है हम इसको यूज करेंगे एक. ठीक है, कि we have ठीक है. ओके.
चलो मूविंग ऑन. ही हैज डन नथिंग फ्रॉम यस्टरडे. व्हाई नॉट डी? देखो, आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू हिम सिंस माय फादर हैड डाइड. देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और ये पास्ट टेंस है. आई नो दिस इज ऑल्सो पास्ट, बट ये जो हम उसको यूज करते हैं ना, जो परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट होता है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है. ठीक है, यस, इसका आंसर सिंस है. ही हैज नॉट डन नथिंग, ही हैज डन नथिंग सिंस यस्टरडे. ठीक है, तो आफ्टर यस्टरडे भी सिंस का मतलब है कल से कुछ नहीं किया. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है. ठीक है, टाइम में हमेशा हम सिंस यूज करते हैं. मोस्टली जब ऐसी चीजों की बात करते हैं हम सिंस यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर फ्रॉम भी नहीं हो सकता. ए और बी, सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता. और फ्रॉम इससे नहीं हो सकता कि हम मोस्टली टाइम में जो है ना वो सिंस यूज करते हैं. ठीक है, ऑन सम इवनिंग्स आई लीव ऑफिस एज लेट एज 11 o'clock, एज लेट एज 7 o'clock. ओके, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें. ऑन सम ऑफ द इवनिंग्स. अच्छा, इसका आंसर, इसका ओके, ए बी एंड सी आर द मोस्ट prominent answers. The correct answer is D. Let's go through this. Why? देखो, on some of the evenings, यहाँ पर you need to identify कि evenings are a general noun. ठीक है, यहाँ पे the हम कब यूज करते हैं मोस्टली, कि जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे होते हैं. on some of the evenings हम यहाँ पे general evenings की बात करें, सी नहीं हो सकता. some evenings तो बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा, because some evenings I leave office as, because you need to attach a preposition behind it. ठीक है, in some evenings कुछ शाम में, अब ये नहीं कह सकते कुछ कुछ शामों में मैं ऑफिस इतनी लेट निकलता हूँ. यू कैन से कुछ कुछ शामों, या ऑन को क्या कहेंगे, मैं ऑफिस इतनी देर से निकलता हूँ कुछ शामों पर. ठीक है, ऑन सम इवनिंग्स. ठीक है, ऑन सम इवनिंग्स आई लीव ऑफिस, बिकॉज आपने भी सुना होगा ना कि जैसे on most of the evenings I'm free, या on most of the evenings I don't have any work to do. इस तरीके से तो on जो है ना हमेशा वो इसके साथ यूज हो रहा है, हमेशा in नहीं आएगा इसके साथ, on आएगा. ठीक है, on some afternoons I like to take a nap. ठीक है, on some mornings I like to make myself coffee. ठीक है, on यूज होगा हमेशा. ठीक है, question. It was hard to believe that he. Please repeat why C option is incorrect. देखो, on some of the evenings I leave office. देखो, the मैं ये नहीं कह रही कि ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक पहली बात कि इससे कंसाइसनेस अफेक्ट हो रही है. ठीक है, on some of the evenings I leave office as late as 11 o'clock on some evenings. देखो, दोनों का मतलब सेम आ रहा है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज में कंसाइसनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो फालतू में अगर आप किसी चीज को कर रहे हो ऑन सम ऑफ द, का दूसरा मतलब जनरली में नहीं यूज हो रहा. इट्स मोर अबाउट, जैसे द इवनिंग्स की बात करो तो इट मींस कि आप किसी कुछ इवनिंग्स को रेफर कर लो, बट यहाँ पे जनरल इवनिंग्स की बात हो रही है प्लस कंसाइसनेस अफेक्ट हो रही है. ठीक है, कंसाइसनेस इंग्लिश में हम स्पेशली एप्टीट्यूड टेस्ट में हम कंसाइसमेंट को बहुत देखते हैं. ठीक है, इट वाज हार्ड टू बिलीव दैट ही वाज डेड फॉर 2 years. देखो, B is the right answer. Why? Because C इससे नहीं हो सकता. He had been dead for 2 years का मतलब है आप imply कर रहे हो कि 2 साल तक वो मरा रहा और अब वो जिंदा हो गया. He had been, आप यहाँ पे कह रहे हो कि वो past tense में मर गया था. That is what you're implying when you say C. It was hard to believe that he had been dead for 2 years. इधर आप ये कह रहे हो कि मुझे ये मानने में बहुत मुश्किल हो रही है कि वो 2 साल तक मरा हुआ रहा. That is what you're saying. But अगर आप has यूज करो तो आप ये कह रहे हो कि अब it's difficult for me to understand कि वो उसको 2 साल हो गए हैं मरे हुए. समझ आया? Yes, present after past. देखो, डेथ एक ऐसा सिनारियो है कि दैट इज समथिंग दैट प्रोलॉन्ग्स. ठीक है, ये नहीं बोल सकते आपके जैसे कि आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दैट ही
that जैसे I still cannot believe that he had been dead for 10 years. इसका मतलब है आप डेथ को एक पास्ट अकरेंस बना रहे हो, बट उसकी डेथ इज स्टिल अ प्रेजेंट अकरेंस, इट्स स्टिल ऑनगोइंग. समझ आया? इसलिए जो है ना इसका आंसर हैज है. ओके, moving on to question number 4 तो नहीं है. I wish that I read this book before the seminar. Yes, A is the right answer. I wish that I had read this book before the seminar. That I, Shakir, I can read the book before. देखो can अगर आप बोल रहे हो ना तो उसका ग्रामेटिकली सेंस नहीं बन रहा. I wish that I can read this book before the seminar. यहाँ पे अच्छा देखो I wish, देखो अभी तक जब आप मोस्टली इस सेंटेंस में इम्प्लाई ये हो रहा है कि यू आर विशिंग अबाउट सम पास्ट एक्शन. ठीक है, कि आई विश दैट आई कैन रीड दिस बुक बिफोर द सेमिनार. तो इसमें यू कैन से आई होप दैट आई कैन कंप्लीट दिस रीड दिस बुक बिफोर द सेमिनार. यहाँ पे जो विश का मतलब यूज हो रहा है दैट इज मोस्टली अबाउट अ पास्ट एक्शन. एज यू विश टू फिनिश द बुक बिफोर द सेमिनार. या इट्स मोस्टली कि बेसिकली सेंटेंस से इम्प्लाई कर रहा है कि काश मैंने ये बुक पहले से खत्म कर ली होती. ठीक है, दैट इज ये बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि सेमिनार से पहले मैंने खत्म कर ली होती. आई विश दैट आई हैड read this book before the seminar. वो ये कह रहे हैं. Yes, he wants to, Lava, you're right, he wants to, but he cannot now. That is what the sentence is implying. Why can he not? Because the seminar is already passed. समझ आया? ये देखो मोस्टली ना ये वाले सेंटेंस थोड़े लंबे होंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा. ठीक है, जैसे आई विश दैट आई कैन रीड दिस बुक बिफोर द सेमिनार. तो अच्छा, दिस इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बिकॉज इसमें रीड वर्सेस रेड का प्रॉब्लम है. ठीक है, जस्ट यू आर राइट. आई थिंक इस क्वेश्चन को हमें डिस्कार्ड करना चाहिए बिकॉज यहाँ पर जो है ना रीड एंड रेड आर द सेम थिंग्स. अगर मैं इसको प्रेजेंट टेंस की यानी रीड, अगर मैं इस हर ऑप्शन को रीड लूँ ना तो फिर ये आंसर होगा. अगर मैं इस हर ऑप्शन को रेड के हिसाब से लूँ तो फिर ये आंसर होगा. यस, इट्स एम्बिगुअस बिकॉज देखो इट्स अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट. दोनों की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है बट वो सेम है, क्या कहते हैं, स्पेलिंग सेम है. सो इसलिए वी कैन नॉट कंप्लीटली से कि इसका आंसर बी हो सकता है या ए हो सकता है बिकॉज प्रेजेंट एंड पास्ट की बात है. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. The man who will score the maximum points will carry the trophy. Okay. Yes, A is the right answer. ठीक है, the man who scores the maximum points will carry the trophy. Because हम again do not forget कि हमारा this is about sentence improvement. ठीक है, so the man who the ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा. the man who the maximum points scores. ठीक है, the man who would score maximum points does not make sense. Why can it not be D? Because यहाँ पर जो है ना repetition आ रही है will की, which makes the sentence very which makes the sentence open to improvement. ठीक है, इसको improve आप किससे कर सकते हो? A से. अगर वो तो the man who will, अगर मैं बोलती हूँ कि you will pass, जैसे मैं बोलती हूँ कि the person who will study will pass the course. ठीक है, तो उसका better version क्या है? The person who studies will pass the course. ठीक है, अगर आप कोई चीज अभी करते हो तो फ्यूचर में आपको वो मिलेगा. दैट इज व्हाट द सेंटेंस इज इम्प्लाइंग. हालांकि डी इज नॉट रॉन्ग बट इट इज नॉट द बेटर वर्जन ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, डज दैट मेक सेंस? ये सब ना हम पास्ट पेपर्स में करेंगे तो उससे और आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी. बट अगर आपके पास टाइम हो या कुछ भी जस्ट सर्च इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस या शायद भी आपको प्रोवाइड करेगा रिसोर्सेज, तो ट्राई सॉल्विंग 5-6 ईच डे. तो इससे आपकी जो है ना लैंग्वेज स्किल्स थोड़ी बेटर होगी, ग्रामर स्किल्स भी. देयर इज एन एंडलेस रनिंग ऑफ ट्रैफिक ऑन द दिल्ली गाजियाबाद रोड. इसका क्या होगा? Yes, stream is the right answer, obviously, because traffic भागती नहीं है, traffic का extreme होता है. ठीक है, heaviness भी नहीं होती, river तो बिल्कुल सेंस नहीं, running भी सेंस नहीं होता. This is about common sense, तो इसका आंसर C हो जाएगा. ठीक है, there is an endless heaviness तो नहीं हो सकता, there is an endless river of traffic भी नहीं हो सकता, stream of traffic होता है. ठीक है, it was a week since he came to home to his mother.
शलीना से सी, बाकी सब ने अभी तक डी का. एनीवन एल्स? Okay, Shalina and Ikra are saying C. D is the right answer. ठीक है. Let's go to this option by option. ठीक है. This is about tenses, तो इसमें थोड़ा मसला होगा obviously सबको. It is a week since he came home to his mother. ठीक है. यहाँ पे नोटिस के वो देखो, अगर आप इसको इग्नोर भी करो ना लाइक टेंस को, तो आपको सेंटेंस का मतलब क्या समझ आ रहा है उर्दू में? मतलब ये समझ आ रहा है कि एक हफ्ता हो गया था जब से वो अपनी अम्मी के पास नहीं आया. सही है. इट देखो सही है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक हफ्ता हो गया था जब से वो अपनी अम्मी के पास घर नहीं आया. सी इट वॉज अ वीक सिंस ही केम होम टू हिज मदर डज नॉट मेक सेंस. ठीक है. इट इज अ वीक तो बिल्कुल नहीं बना कि पास्ट टेंस से बात होगी. इट शैल बी अ वीक फ्यूचर टेंस से बात होगी. इट हैव बीन अ वीक नहीं हो सकता. व्हाई? बिकॉज हैव एंड वीक. देखो हैव जो है ना, सॉरी वीक नहीं. देखो यहाँ पे बात हो रही है ही की और प्लस इट की बात हो रही है यहाँ पे. सही है. तो अगर मैं देखो दिस इज प्लूरल एंड दिस इज सिंगुलर. इट हैव बीन अ वीक डज नॉट मेक सेंस. अगर आपको यहाँ पे हैव यूज करना होता तो आप ये कह सकते हो देयर हैव बीन वीक्स व्हेन आई डिड नॉट फील वेल. ठीक है. या इस तरीके से. लेकिन इट के साथ आप कभी भी प्लूरल को यूज थोड़ी करोगे. ये सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल. ठीक है. एंड इट हैड बीन अ वीक सिंस ही केम होम टू हिज मदर. ओके. Shalina and Ikra, is it clear? Yes. अगर देखो किसने बोला पर सॉरी अहमद ने बोला. किसने बोला? यस अहमद ने बोला. अगर हैज आता ना अहमद तो फिर एम्बिगुअस हो जाता. व्हाई? बिकॉज फिर हम ये कहते हैं इट हैज बीन अ वीक सिंस ही केम होम टू हिज मदर. मतलब वो हफ्ता अभी तक चल रहा है जब तक वो अपनी अम्मी के पास, मतलब एक हफ्ता हो गया वो अपने घर पे नहीं आया. और अगर मैं ऑप्शन नंबर डी यूज करते मैं बोलती हूँ एक हफ्ता हो गया था जब से वो अपने घर नहीं आया, मतलब अब वो घर आ चुका है. समझ आया? तो इसलिए जो है ना हैज और हैड को एक साथ ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ बिकॉज दोनों करेक्ट होते हैं. बिकॉज फिर ये एम्बिगुअस क्वेश्चन बन जाता. ठीक है. Moving on, by the end of this century, scientists surely have discovered a cure for cancer. Okay, B. अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी. फ्यूचर परफेक्ट के साथ ना हमेशा पास्ट आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है. ठीक है. तो अगर मैं कहती हूँ ना कि my exams will have ended, मैं ये नहीं कहूँगी my exams will have end. मैं कहूँगी my exams will have ended by the time I'm going for a vacation. ठीक है. या you guys will नहीं, या फिर you will have been नहीं, बल्कि वो डिफरेंट हो जाएगा. चलो जैसे मैंने बोला कि my exams will have ended. ठीक है. तो यहाँ पे हमेशा फ्यूचर परफेक्ट क्या है? will have. ठीक है. फ्यूचर इज विल, परफेक्ट टेंस इज हैव एंड पास्ट के साथ हमेशा डिस्कवर्ड है. इज इट क्लियर कि ये फ्यूचर सेंटेंस है? बिकॉज यहाँ पे सेंचुरी अभी तक एंड नहीं हुई तो बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी फ्यूचर तो आएगा. ठीक है. ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. मस्ट डिस्कवर नहीं हो सकता. दिस इज अ सजेशन. साइंटिस्ट श्योरली मस्ट डिस्कवर अ क्योर फॉर कैंसर. ठीक है. द बेटर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. प्लस श्योरली एंड मस्ट बोथ हैव द सेम इम्प्लीकेशन, तो आप दोनों को एक साथ यूज नहीं करोगे. मतलब बेसिकली बोथ आर इम्प्लाइंग समथिंग दैट शुड हैपन. वुड के साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा. जैसे would and will, my exams would have ended. देखो would is something that was supposed to happen. जैसे my exams would have ended by the time I was going to exam. वो कह रहे कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाने थे जब तक मैं वेकेशन पे नहीं जा रहा, जब मैं वेकेशन पे जा रहा था. सही है. तो यस would के साथ भी पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा. लेकिन would के साथ जब have होगा ना हसान और हसन, ठीक है, तब होगा. अगर मैं बोलूंगी ना my exams would end तो फिर प्रेजेंट आएगा. ठीक है. हमेशा मैं परफेक्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पे. My exams would have ended, my exams will have ended. सही है. तो तब आएगा my exams will end, my exams would end. तो दोनों में
प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है. इफ यू हैव बीन केयरफुल यू कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट. इसका क्या होगा? had you have been careful. Okay. Anyone else? Raw and Soni ke alawa. Only one answer is right. Okay, guys, I want you to read this question again. Try finding out what is this sentence, what is the nature of the sentence, what is the tense of the sentence, and then tell me the answer. Only two answers are right. Laiba Ali and I think Mohammad Hassan, yes. Option number D is the right answer. Let's go through this. देखो, यहाँ पर उन्होंने बात की है you could have avoided the accident. वो कह रहे हैं accident has already happened. ठीक है? Something that is already done. ठीक है? If you are careful, you could have. वो कह रहे हैं कि अब अगर मैं A यूज करती हूँ ना, have you had been, ये तो बिल्कुल देखो सेंस नहीं बन रहा, दोनों को एक साथ आप यूज कर रहे हो, have और had को. Have और had को जब आप साथ यूज करते हो तो आप कहते हो I have had my share of troubles. ठीक है? Have you had been कभी सेंस नहीं बनता. ठीक है? वरना वो होता है I have had my fair share of troubles. तो A और C कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता कि आप हैव और हैड के बीच में यू लगा दो. ठीक है? बी, सी और ई, बी, डी और ई देखते हैं. बी सेज इफ यू हैव बीन केयरफुल, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप केयरफुल रहो तो आपका एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता था. ठीक है? तो बी तो नहीं हो सकता. इफ यू आर केयरफुल भी नहीं हो सकता, इफ यू हैव बीन केयरफुल भी नहीं हो सकता. अगर आपको हैव बीन यूज करना तो बोलोगे इफ यू हैव बीन केयरफुल यू विल नॉट फेस एन एक्सीडेंट. प्रेजेंट की बात हो रही है. इफ यू आर केयरफुल देयर विल बी नो एक्सीडेंट. प्रेजेंट की बात हो रही है. लेकिन यहाँ पे देखो, अच्छा, had you been, आप कह रही हो कि इंटेरोगेटिव है, नेसेसरी नहीं है. देखो, had you को आप यूज कर सकते हो नॉर्मल सेंटेंस में भी. तो मैं आपको कहती हूँ कि had you studied you would have passed. सही है? अगर आपने तो if you देखो had you studied का सेम इफेक्ट है as if you had studied. अगर मैं बोलती had you been careful, this has the same effect as if you had been careful. Does that make sense? एक मिनट, let me go through the questions. If you were होता तो if you were B में होता तो correct होता. If you were careful, you could avoid. Yes. What about if you? Yes, ये exactly that's what it said. सोनी के ये होता और ये these are the same things. ठीक है? नहीं, लाइबा सी. If you have been and had you been is आप ये यूज करते हो. This is not a question. सही है? बिकॉज अगर मैं आपको देखो, यू कैन रीड सेंटेंस ऑन द इंटरनेट कि आपको बताएं कि लिखा होता है हैड यू स्टडीड यू वुड हैव पास्ड. पढ़ा होता तो पास हो जाते. दैट्स व्हाट इट मींस. ठीक है? अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम पास हो जाते. दैट इज इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड. हैड यू स्टडीड यू वुड हैव पास्ड. पढ़ा होता तो पास हो जाते. दैट्स व्हाट इट इंप्लाइज. समझ आया? अगर ये ऑप्शन होता तो दोनों करेक्ट होते हैं. इसलिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया. सही है? Rabbi, is it clear to you? Unless the population growth stabilized, environmentalists predict a worldwide starvation by 2080. Why not E? पिछले वाले क्वेश्चन है मत. देखो, यहाँ पर उन्होंने पास की बात की हुई है कि एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है. वो कह रहे हैं अगर तुमने ये केयरफुल हुए होते तो तुम एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते थे. ठीक है? तो यहाँ पर इफ यू हैव बीन प्रेजेंट, यहाँ पे ये चीज पास्ट में आ गई. ठीक है? ट्रांसलेट इनटू उर्दू समझ आ जाएगा. वो कह रहे हैं कि अगर मैं ऑप्शन में यूज करती हूँ ना, तो फिर उर्दू में ट्रांसलेट ऐसे हो जाएगा कि अगर आप केयरफुल हो या अगर आप केयरफुल रहे हो तो आप एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते थे. सही है? तो दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि आप किसी पास्ट एक्सीडेंट की बात कर रहे हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 on this page.
इसका क्या आंसर होगा? Yes, B is the right answer. Okay, Rao says it's D. Okay, anyone else जिसको लग रहा है D है? Or any other option? अच्छा, why is it stabilizes? सबसे पहली बात they're saying कि अगर कोई, देखो यहाँ पे unless the population growth stabilizes, environmentalist predict a worldwide. देखो वो कह रहे हैं अगर कोई चीज हो जाती है या अभी होगी तो environmentalists predict कर, in basically वो कह रहे हैं कि जब तक या until something does not happen, environmentalists predict कर रहे हैं कि starvation आ जाएगी. If I say unless you study, you will not pass the exam. Unless you must study नहीं हो सकता. Unless you will study नहीं हो सकता, तो फिर वो होगा if you will study, you will pass the exam. ठीक है? Unless you will study, you will pass the exam नहीं हो सकता. Unless you will study, you will fail the exam नहीं हो सकता. देखो, unless you will study, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ अब स्टेबलाइज होगी तब वो कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ अभी स्टेबलाइज नहीं होती ना, तो unless Library saying there should be comma after stabilizes. Yes, there should be, but yeah, I think unka error hai. Unless population growth stabilizes, comma the environmental, yes, there should be. Acha, what is this is the dependent part of the sentence. This is the independent part of the sentence. Comma के बाद जो independent part है और उससे पहले dependent part है, ठीक है? चलो, moving on. The principal lamented that though a detailed report was submitted to the management a month ago, अब इसका आंसर क्या होगा? Okay. More responses. Guys, participate, please. Okay. Great. You guys are doing good. B is the right answer. Okay. Anyone else is cooking or okay? Ashna says it's A. Why do you think it's A, Ashna? Anyone else इसको C D E में से कुछ लग रहा है? Ashna, I need an explanation. Why do you think it's an A? Okay. कोई और जिसको लग रहा है C D E में से ऑप्शन है? Okay, पहले तो देख लेते हैं why is it B? The principal lamented that though a detailed report was submitted to the management a month ago, यहाँ पे भी कॉमा आना चाहिए, ठीक है? No action is being taken so far. This एक महीने पहले सबमिट हो गई थी तो अब तक कुछ हो जाना चाहिए था, सही है? तो एक्शन अब तक हो जाना चाहिए था मींस पास्ट में ऑप्शन होगा, इज इसलिए नहीं हो सकता, ई इज नॉट करेक्ट, ठीक है? नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार, मतलब अभी तक कुछ नहीं किया, मतलब ना पास्ट में किया है ना अब तक किया है, इससे बी इज राइट आंसर. नो एक्शन हैड टेकन सो फार. देखो एक्शन इज टेकन होता है या फिर हैड के साथ बीन आएगा ना. नो एक्शन हैड बीन टेकन सो फार, लेकिन वो भी हैज आना चाहिए. व्हाई? बिकॉज वो प्रेजेंट अभी की बात कर रहे हैं कि एक महीने पहले सबमिट करी थी रिपोर्ट लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ. समझ आया? दैट इज व्हाट दे इम्प्लाइंग इन द सेंटेंस. इसलिए जो है ना इसका आंसर बी है. वाज बीन टेकन नहीं हो सकता बिकॉज ये हम अभी की बात कर रहे हैं, और एनी तो बिकॉज हम नो की बात करें तो एनी तो नहीं हो सकता. ये दो तो बस ये इसमें बीन आना चाहिए और ये सही है, ठीक है? और प्लस ये हैड की बात हो रही है, हम हैज पे जाएंगे क्योंकि हम अभी की बात करें कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, सही है? बिकॉज सो फार का मतलब है हम प्रेजेंट में खड़े होकर बात करें. अच्छा, इनकेस यहाँ पर बीन होता ना, अगर नो एक्शन हैड बीन होता तो फिर इस सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता. इस सेंटेंस का मतलब होता कि अभी आप खड़े हो एंड आप कोई पास्ट चीज की बात बता रहे हो. आप बोल रहे हो कि यार उस वक्त एक महीना हो गया था मुझे रिपोर्ट सबमिट करे हुए लेकिन उस वक्त तक भी कोई एक्शन नहीं आया था, अगर हैड हम यूज करते. और सही है, तो दैट इज व्हाट द ऑप्शन वुड हैव इम्प्लाइड. लेकिन मैं हैज यूज किया, दिस मींस कि यार मुझे रिपोर्ट सबमिट किए हुए एक महीना हो गया है लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको ये चीज? ओके, मूविंग ऑन. यस, Urdu translation helps a lot, but correct Urdu translation helps a lot, Shakil.
इफ योर उर्दू इज नॉट स्ट्रॉन्ग डोंट डू इट, बट देखो उर्दू इंग्लिश दोनों को साथ में रखो, रीड द ऑप्शन बार, देखो ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑप्शन को रीड करो, पूरे सेंटेंस को रीड करो, ठीक है। चलो ये वाला मुझे बताओ। Okay. So you guys are saying B, C. Okay. So this question was comparatively difficult, but इसमें एक concept आपका आ रहा है. Have you guys shared it with Alina? Yes. Correct answer is C. ठीक है. We'll go through each option and we'll see what happens. सही है. The practical importance of the role of the industrialist in the establishment of the new order. Then अब यहाँ पे उसके बाद वो बात करेंगे about the importance of other things. सही है. तो इसलिए then that तो confirmed है. अगर that हम यूज नहीं करते ना, तो यहाँ पर होना चाहिए practical importance of the role of the industrialist in the establishment of the new order is greater than the importance of the economist and the politician. लेकिन since यहाँ पे कोई वो option नहीं है और हम पैरेललिज्म को माइंड में रख रहे हैं, तो हम इंपॉर्टेंस को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम इंपॉर्टेंस को दैट ऑफ से कंपेयर रिप्लेस कर देंगे। तो हम कहेंगे द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू ऑर्डर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ। तो इससे ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हम दैट ऑफ की बात करें। अब बचा बी और सी। सो सी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि देन दैट ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स एंड द पॉलिटिशियंस, आपने ये कहा, ठीक है। सो अगर आप दैट ऑफ को रिप्लेस करके इंपॉर्टेंस को ला दो, तो आप ये कह रहे हो द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू ऑर्डर इज ग्रेटर देन द importance of the economists and the politicians. That is wrong. So yeah, that of is the same as this importance. प्लस यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट के आगे भी एस नहीं है, तो अब यहाँ पे भी डाल देते हैं। अगर आप ये ऑप्शन यूज करते हो, आप इसको पढ़ो, द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू ऑर्डर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियन। मेक सेंस? मेक सेंस गाइस? ओके ग्रेट। बाकी सबको समझ आया है? All 24 of you. Is it clear? इकोनॉमिस्ट के आगे ही एस, एक मिनट, आई मिस द मैसेज। इकोनॉमिस्ट के आगे ही एस लगा देते तो अच्छा, यू आर सेइंग कि अगर ये हो जाता the practical importance of the role of the industrialists in the establishment of the new order is greater than the economists and the politicians. That's what you're saying, right? Yes, we're talking about practical importance. Acha, so you're saying it should be is greater than the economists and the politicians. Basically, you're saying कि ये option, but ये now, right? That is what you're saying. That would have been right as well. But दो ऑप्शन कभी भी साथ नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? That would have been right as well. The practical importance of the role of the, but देखो फिर पता है मसला क्या हो जाता है? फिर मसला ये हो जाता है कि you don't know कि इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन की किस बारे में आप बात करो। जब हम दैट ऑफ यूज करते हैं ना, तो आपको ध्यान आ जाता है कि अच्छा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे की बात है, तो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के रोल की बात होगी। जब आप ये यूज करते हो ना, तो एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन आती है रीडर के माइंड में कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं अबाउट द इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन। देखो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, दोनों सेंटेंस दोनों ऑप्शंस पढ़ के दिखाती हूँ जो राउंड ने बोला है एंड जो करेक्ट ऑप्शन है। The practical importance of the role of the industrialist in the establishment of the new order is greater than the economists and the politicians. Parallelism defy हो रहा है, that मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बट ये बिल्कुल सही भी नहीं है, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन आ जाती है कि इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन की किस चीज की बात हो रही है। गेट इट? ओके, अच्छा ऊपर कोई और क्वेश्चंस दैट आई मिस्ड क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ रहे थे। राव के बाद किसी ने कोई सवाल पूछा था? Okay, moving on. I can always count on him in times of difficulty. इसका क्या होना चाहिए?
Okay, Mohammed Hassan is saying E. Okay, E is right answer. Obviously, you count on someone. आप किसी के साथ बैठ के नहीं गिनते हो, आप किसी के ऊपर किसी पे बैठ के नहीं गिनते हो, ठीक है. काउंट ऑन ही तो नहीं हो सकता. काउंट एट हिम, आप उसको उस पे एक काउंट एट हिम का मतलब है आप उसको देख के काउंट करो. सही है, व्हिच इज नॉट राइट. काउंट ऑन ही प्रोनाउन का मसला है. काउंट हिम ऑन, उसको गिन रहे हो, दैट इज नॉट राइट एज वेल. ठीक है, आप किसी किसी पे आप रिलाई करते हो, तो किसी पे का मतलब है काउंट ऑन. सही है, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, sorry, moving on. Okay, sorry, I have got some tea but I do not have a sugar. इसका क्या होगा? Yes, any sugar होता है. शुगर में एक नहीं आता. सही है, have a sugar नहीं होता. सम अगर आप यूज करोगे ना, तो सम अगर आप यूज करते हो ना, तो आप कहोगे आई गॉट सम टी बट आई डू नॉट हैव सम शुगर. तो इसका मतलब है यू आर इम्प्लाइंग कि मेरे पास सम शुगर नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा शुगर है. दैट इज व्हाट यू इम्प्लाई. समझ आया? व्हिच इज नॉट द करेक्ट आंसर. आप ये कह रहे हो कि मेरे पास थोड़ी सी चाय तो है लेकिन मेरे पास थोड़ी सी चीनी नहीं है. इसका मतलब है मेरे पास बहुत सारी चीनी, या तो मेरे पास कुछ भी चीनी नहीं है. दैट इज व्हाट सम इम्प्लाइज. सही है, but I do not have more sugar. That is not the correct answer. I do not have got sugar. तो बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा, इसलिए any is the right answer. ठीक है. I was delighted to see him fully recover. Yes. Why is B the right answer? Because ये past tense से बात हो रही है कि मैं बहुत delighted था कि वो पूरे तरह से recover हो चुका था. सही है, इसलिए जो है ना B is the right answer. एक ही हो सकता है to see he fully recovered. वो तो ये जो है ना, इससे बेहतर बेहतर ऑप्शन जो है वो बी है. तो इसलिए ए सी, आई वाज रेडी टू सी ही फुली रिकवर्ड. ही फुल रिकवर्ड, बल्कि तो फुली भी नहीं. फुली हो तो अभी भी सेंस बनता, बट ये तो फुल रिकवर्ड नहीं हो सकता. टू सी हिज फुल रिकवरी. आई वाज रेडी टू सी हिज फुल रिकवरी. ओके, दैट कुड हैव बीन एन आंसर, बट हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं कि उसने रिकवर कर लिया, और इधर बात हो रही है कि उसकी रिकवरी हो गई. इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बेटर ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं टू सी हिज फुल रिकवरी, मतलब उसकी रिकवरी हो गई. और ऑप्शन नंबर बी में हम कह रहे हैं कि वो रिकवर हो गया. सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बेटर है, बिकॉज वो हम उस बंदे की बात करें, उसके दोस्त की बात करें कि ही फुली रिकवर्ड. ठीक है, इससे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. दिस इज द लास्ट वन, देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू एयर्स. Each of our students pay their tuition fee at the beginning of the month. इसका क्या? निशा, मैं इस क्वेश्चन के बाद जाती हूँ इस पे दोबारा. मुझे इसका आंसर बताओ. B is not the right answer. C is the right answer. Let's see why. This is important. Each of you, if I say, acha, take a moment, listen. Each of you are supposed to do this task. Each of you is supposed to do this task. First या second? Is. अच्छा, मैं अगर आपको कहती हूँ रुको. This means आप में से एक बंदा, हम एक ग्रुप में से एक बंदे को सिलेक्ट करके बात कर रहे हैं. तो इसलिए ईच जब आप यूज करोगे, जब एनीवन यूज करोगे, जब आप एवरीवन यूज करोगे, जब आप नो वन यूज करोगे, जब आप समबडी यूज करोगे, जब आप एनीबडी यूज करोगे, तब इज यूज होगा. लेकिन जब आप ऑल यूज कर रहे होगे, या जो आप कह रहे होगे, हाँ, जब बेसिकली आप सबसे मुखातिब हुए हो, तब आ रहा है. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मैं कहती हूँ nobody is supposed to do this, nobody are supposed to do this नहीं होगा, या none of you, आप में से किसी एक को भी ये नहीं करना. आप
सिंगुलर बंदे की बात कर रही हूँ, ठीक है? Does that make sense to everyone? All of you are supposed to do this. सबको ये काम करना है. आप में से एक एक बंदे को काम करना है. तो जब आप एक एक की बात करते हो तो इज आएगा, जब आप ऑल की बात करते हो तो आर आएगा. इधर ईच की बात हो रही है तो हिज आएगा. ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे, और ईच की बात हो रही है, ठीक है, तो ईच की बात हो रही है तो पेज आएगा, ठीक है, क्योंकि एक बंदे की बात हो रही है. यू डोंट हैव टू क्या कहते हैं, लुक एट दिस. अगर मैं कहती हूँ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा मैम, अच्छा मैं कहती हूँ ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे देयर, फिर ये सही होता. व्हाई? बिकॉज मैं ऑल की बात कर रही हूँ, प्लूरल है, तो वर्ब भी साथ में प्लूरल आएगा, ये भी प्लूरल आएगा, ये तो ऑलरेडी प्लूरल था, सही लाएगा. अगर मैं ईच की बात कर रही हूँ तो ईच इज सिंगुलर, तो यहाँ पे पेज होना चाहिए, ठीक है. लेकिन हम सारे स्टूडेंट्स की बात में हर स्टूडेंट के एक एक बंदे की, सॉरी, हम एक बंदे की बात करें तो हिज आएगा और पेज आएगा, ये स्टूडेंट्स तो वैसे ही रहेगा, ठीक है. देखो, everyone in this class is supposed to submit their assignment, submit his assignment, ठीक है. या this is right, लेकिन this is wrong. Everyone in this class are supposed to, ठीक है. Okay, you're saying if it's written majority of students, majority of students, देखो majority का मतलब भी यही है कि एक से ज्यादा की बात हो रही है. अगर 10 स्टूडेंट है तो आप उसमें से 8 की बात करो, 5-6 की बात करो, that is also more than one, ठीक है. तो आप ये कहते हो majority of our students submit, majority of our students pay their tuition fee, फिर pay आएगा and there आएगा, फिर भी ये ऑप्शन सही होगा. बिकॉज आप एक से ज्यादा की बात करो, डज नॉट मैटर कि आप सबकी बात करो या मेजोरिटी की बात करो. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ ईच ऑफ, नहीं, ईच ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द मेजोरिटी, तो फिर पेज आएगा और फिर हिज आएगा, ठीक है. द मेन थिंग हियर इज कि आप एक की बात करो या एक से ज्यादा की बात करो, मेजोरिटी इज स्टिल मोर देन वन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? सबको ये चीज क्लियर है? Okay, Nisha, you were, but we use majority as authority. What? I will not get your question. It was a question. I don't know. मुझे समझ नहीं आया. It's an is equals to idiom. Idiom कहाँ से आ गया? Okay. Laiba, can you please repeat your question if there was one? And Ahmed, okay, you got it. सही. Ahmed, आप क्या कह रहे हो? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा. जल्दी से बताओ, then we are going to move on to errors. So let's start errors. ठीक है. अब एरर्स में क्या होता है, वी आर गोइंग टू डू ये प्रैक्टिस, ठीक है. घबराओ नहीं, इसमें यू मोस्टली हैव 5 or 4 ऑप्शंस एंड आपको डिसाइड करना होता है कि ए पार्ट गलत है. एक मैं आपको करके दिखाती हूँ. यस निशा, क्या हुआ? Oh yes, you had a question. Which option were you confused in? पिछले वाले क्वेश्चन में. Why not see? Okay. Because देखो, I was delighted to see his full recovery. देखो, yes, you're right. This is also correct. लेकिन the thing is कि हम जो है ना यहाँ पर देखो, जब आप ये पढ़ते हो ना तो आपका जो सब्जेक्ट है ना वो उसकी रिकवरी बन जाती है. जब आप ये करते हो ना तो आपका सब्जेक्ट जो है ना वो बंदा बन जाता है, इसका दोस्त. सही है, यू आर नॉट रॉन्ग, किसी आंसर क्यों नहीं है, बट सिंस आवर मेन फोकस इज द पर्सन फर्स्ट एंड देन हिज रिकवरी, ठीक है, तो इट सीम्स लाइक ही एस्केप्ड. मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हो, या आई एम मिसिंग समथिंग है क्या. बट निशा देखो, आई वाज डिलाइटेड, देखो ये ऑप्शन हो सकता था, अगर ये नहीं होता तो ये ऑप्शन होता, बट यहाँ पे आवर सब्जेक्ट इज हिम, सो आई वाज डिलाइटेड टू सी हिम फुली रिकवर्ड.
ठीक है, आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फुल रिकवरी। तो दिस इज ऑल्सो राइट, बट यहाँ पर हम सब्जेक्ट को उसका दोस्त रख रहे हैं, सही है, तो इसलिए जो है ना हम हिम की बात करें, ठीक है। ओके ये देखो दिस क्वेश्चन, आई फील कि ये जो सवाल, ये क्वेश्चन जो है ना, दिस हैज सम एम्बिग्विटी अटैच्ड टू इट, इसमें और वो चाहिए हमें क्लैरिटी, बट यस यू आर नॉट रॉन्ग, सी कैन बी द आंसर, बट द करेक्ट आंसर इज बी बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ओके मूविंग ऑन टू एरर आइडेंटिफिकेशंस, मैं आप लोग के साथ एक करवा देती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से करना है, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, वेट। Okay. Let's start with the first one. The first one says, since the government was bankrupt, many of the soldiers which were sent to quell the riots had not been paid in months. What you have to do error इसमें कि you need to identify कि इधर गड़बड़ है, इधर गड़बड़ है, इधर गड़बड़ है, इधर गड़बड़ है, या कोई गड़बड़ नहीं है. Now tell me the option. B is the option. Why is it B? Why is it B? Yes, B is the right answer. But why? Yes, you never use which for a human. That's what I told you guys, right? कभी भी आप humans के लिए which को use नहीं करते, तो B is the right answer. ठीक है? Okay, moving on to question number 2. Although there had been political rivals on more than one occasion, John Quincy Adams remained one of Thomas Jefferson's closest friend until his death. Ma'am, I'm still confused. Nisha, question छोड़ दो because उसमें there is not full context. तो इसको छोड़ दो, discard this question because you are not wrong and ये बात सही है कि इसको recovery भी होना चाहिए था, but the thing is कि हम देखो ये सेंटेंस से हमने कोई इंटेंस उठाया ना, तो दिस माइट बी पिक्ड अप फ्रॉम अनदर पैसेज, सही है, तो इसमें वी डोंट नो द फुल कॉन्टेक्स्ट, सो यस बी और सी माइट बी द बोथ आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है, दोनों सही आंसर्स, सही है, यू आर नॉट रॉन्ग अबाउट इट, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, टेल मी इसमें क्या, इसमें कोई एरर है एज इन ऑप्शन नंबर ई? ओके ए, चलो ए लिख रहे हो ना, जस्ट मुझे 3-4 वर्ड्स में बता दो व्हाई डू यू थिंक इट्स ए? Liber saying there had been political rival. Liber political rivals are humans. तो दे होगा ना, दे इमरान खान एंड नवाज शरीफ हैव बीन पॉलिटिकल राइवल्स, सही है, ये होगा ना। अच्छा मेरी एक बात सुनो, जब आप लोग ये सेंटेंस पढ़ते हो तो किसके डेथ की बात हो रही है? टेल मी, जॉन क्विंसी की या थॉमस जेफरसन की? कैन एनीवन टेल मी किसकी बात हो रही है? वी डोंट नो किसकी बात हो रही है, कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया हुआ। देखो इफ मैं और मेरी दोस्त वी आर गुड फ्रेंड्स और मैं कहती हूँ कि इफ समवन सेज कि जवेरिया एंड मरियम वर गुड फ्रेंड्स अंटिल शी मूव्ड अवे, डाइट का वर्ड में यूज नहीं करते, अंटिल शी मूव्ड अवे, हु मूव्ड अवे वी डोंट नो, वी नॉट क्लियर, तो यहाँ पे एम्बिग्विटी आ गई, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। कि देखो दिस इज वन प्रॉब्लम, दिस इज वन एरर कि राइटर एम्बिग्विटी प्रोड्यूस कर देता है, उस सेंटेंस को पढ़ के हमें नहीं समझ आता। अच्छा मैं बोलती हूँ, लेट्स से Savera and Nisha both had studied a lot, but she passed with flying colors. Who passed? We don't know. ठीक है, सही है, तो यहाँ पे करेक्शन क्या होनी चाहिए थी? करेक्शन हमसे मांगी नहीं, बट करेक्शन क्या होनी चाहिए थी? अगर हम जॉन की बात करें तो हम कहते हैं until the former's death या until John's death। अगर इसकी बात करें थॉमस की तो हम कहते हैं until the latter's death या until Thomas's death, ठीक है, मेक सेंस, डी इज द करेक्ट आंसर। एम्बिग्विटी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर। आई सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग ने रीजंस लिख लो, अगर आप लोग ये कर रहे हो कि इसके आगे लिख दो एम्बिग्विटी विथ हु डाइड, तो आप लोग जब रिवाइज करोगे ना तो आप लोग को हेल्प हो जाएगी।
ठीक है, इधर लिख लो which is not used in humans, ठीक है, सही है। moving on to oh, ये क्या हो गया? Moving on to question number 3. Even those who profess to care about green issues often fail to consider how their daily choices affect the environment. What's the correct answer? D. Okay. D. Why? You're right. D is the right answer. Because effect versus effect. ठीक है? This is a verb. This is a noun. ठीक है? I will say the effect of the flood was huge. तो मैं ये effect use करूँगी. ठीक है? But if I say the flood affected Pakistan enormously, then मैं affected as a verb use करें. तो ये effect use होगा. Is it clear to everyone? Reasons लिख लो याद से. You think you may remember, but you will not when you revise. Just 2-3 words लिख लो ताकि आप लोग को help हो जाएगी. सही है? Moving on to question number 4. Ants which have inhabited the earth, I want more participation, बहुत कम participation आ रही है. Ants which have inhabited the earth for at least 100 million years are without doubt the more successful of the social insects of the Hymenoptera, an order that also includes wasps and bees. What is the correct option? I think ये बहुत better है passages और सबसे, इसमें तो ज़्यादा participation होनी चाहिए, तो इतनी मजे की exercise है. Okay, Devika says it's A. Why A? Shakil, you're right. It should be more successful because यहाँ पे all की बात आ रही है, ठीक है? Superlative versus comparative. Why is it A, you guys? Devika and Soni. Yes, तुम लोग सब A बोल रहे हो, but give me the reason why A. Reasons बगैर नहीं बताओ मुझे, reasons के साथ बताओ. Which समझ नहीं लग रहा. And देखो देविका, I said humans के लिए which नहीं यूज होता. क्या समझाना है शरीना? Do you want 3 या फिर कौन सा समझाऊं? करना क्या है? अच्छा देखो, एरर आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, ठीक है, एंड जिस जगह पे तुम्हें एरर लग रहा है ना वो बताना है, ठीक है। जैसे इसमें एंड्स विच हैव, देखो विच यहाँ पे देविका इज राइट बिकॉज हम ह्यूमंस की बात कर रहे थे, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच को यूज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट रॉन्ग, सही है, उसके लिए मसला नहीं होता, ये ए तो सही है, ठीक है, ठीक है। फिर पूरे सेंटेंस में शरीना मसला कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। Why? बिकॉज यहाँ पर उन्होंने बात की ऑफ ऑल द सोशल इंसेक्ट्स। सुपरलेटिव कब होता है? सुपरलेटिव कंपैरेटिव सबको पता है ना क्या होता है? कंपैरेटिव इज, जैसे कंपैरेटिव मोर सक्सेसफुल क्या होता है? क्या कहते हैं सक्सेसफुल को? एक तो कंपैरेटिव होता है, एक सुपरलेटिव, आई फॉरगॉट द फर्स्ट फॉर्म क्या कहते हैं। जैसे सक्सेसफुल अगर फर्स्ट फॉर्म है तो कंपैरेटिव होगी मोर सक्सेसफुल, यस पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा कि पॉजिटिव ही होता है, आई एम नॉट श्योर क्या फर्स्ट फॉर्म होती है वो सक्सेसफुल होती है कि अली इज सक्सेसफुल। कंपैरेटिव होगी अली इज मोर सक्सेसफुल देन निशा, ठीक है। फिर मैं अगर मैं सबसे कंपेयर करूं, अली इज मोस्ट सक्सेसफुल इन ऑल ऑफ हिज क्लासमेट्स, समझ आया? सबकी बात हो रही हो ना तो मोस्ट आएगा, इसलिए ऑप्शन इज सी। सी ऑप्शन है कि सी इज द एरर, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर, दैट इज व्हाट द एक्सरसाइज इज। शलीना सही है। Question number 5. For my sister and I, the trip to Paris was the fulfillment of a lifelong wish which we had scarcely dared to express. What should be the correct answer for this? Yes, exactly. You never use I इस form में. You say it's me. ठीक है? Easy. I think ये बहुत अच्छी exercise है because ये passages और उन सबसे तो बहुत बेहतर है. ठीक है? This is a fun thing to do. Question, you may agree or disagree. Question number 6 करते हैं. The volunteers, upon discovering that a large number of village children were infected by parasites from unclean drinking water, decided to make the well digging project their highest priority. What should it be? शकील, ड्यू टू अगर आप यूज करते हो ठीक है, बट फ्रॉम भी तो ठीक है ना। फ्रॉम इज ऑल्सो समथिंग जो कॉज इफेक्ट के रिलेशन को बताते हैं। यस, इट्स नो एरर। जैसे मैं बोलती हूँ कि he died from a heart attack,
that is also correct. But अगर मैं बोलती हूँ he died due to a heart attack, that is also correct. From is a azan हो रही है. I'm going to take a break. But मैं sentence में from is a cause effect thing. ठीक है, I'm going to take a 3 minutes break. Although farmers complained that the company's new product was expensive, malodorous, and dangerous to handle, there was a few who would dispute its effectiveness as an insecticide. Sorry. Yes. So बताओ इसका क्या आंसर है? Yes. Why B though? यस, क्योंकि हम फार्मर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑल द फार्मर्स कंप्लेन दैट, ठीक है, तो यहाँ पर फार्मर्स की बात हो रही, तो ये वर होना चाहिए था. ठीक है, एनीवन एल्स जिसको इसका आंसर ये नहीं लग रहा हो, कोई और आंसर लग रहा हो? मैम क्वेश्चन 6 में ए क्यों नहीं हुआ? ओके, लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 6. उसी में बता दिया करो. अच्छा ठीक है फातिमा, ए में क्या मसला है? व्हाई डू यू थिंक कि ए होना चाहिए? एज एन एरर क्या है ए में? Okay, so you were saying the volunteers, comma, discovered that a large number of the village group were infected by the parasites of unclean drinking water, comma, decided to make. Do you see, this does not make grammatical sense. अगर हमें discovered यूज करना होता ना, देखो upon जब हम यहाँ यूज करें इसका मतलब है volunteers, जब उनको पता चला कि ये हुआ, उन्होंने ये डिसाइड किया. Get it? अगर हम सिर्फ discovered यूज करते हैं, हम कहते हैं the volunteers
discovered that a large number of the village group were infected by parasites from unclean drinking water and thus decided to make the well digging project the highest priority. Does that make sense? यहाँ पे this is an added information and you cannot use discovered here. अगर आप discovered use कर रही हो तो आप पढ़ो, आपका option, आपका sentence sense नहीं बनेगा. Then tell me if it's right or not. समझ आया या नहीं? Okay, great. Question number 7 भी आ गया है. Question number 8 करते हैं. In the wake of recent thefts, the town's wealthier residents have installed gates, alarm systems, and even video surveillance equipment in the neighborhoods, hoping that it will prevent further burglaries. ठीक है, अब बताओ. What's the correct option? E. E. The correct option is C. See guys, यहाँ पे उन्होंने बात की है gates, alarm systems, and even video surveillance. 3 चीजों की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे it लिखा हुआ है. या तो दे होना चाहिए था, या फिर अगर it लिखा है तो क्या वो इन तीनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं तो फिर उसका नाम आना चाहिए था यहाँ पे. सही है? Good to see you participating, Mozam. I think this is the first time मैंने आपको आज की क्लास में participate करते देखा है. But you guys get it कि ये दे होना चाहिए था या पे identified होना चाहिए कि it किसकी बात करें इन तीनों में से. ठीक है? सही है? Moving on to question number 9. To repair the damage that time and elements had wrought on the ancient fresco, the restorer used a simple mixture from plaster, pigment, and little water. इसका क्या मतलब है? इसका क्या आंसर है? Sorry. Very easy. Okay. Why is it B, guys? Reply, but you're right. Why is it okay? Why is it B? B में क्या मसला है? A, B, C वालों मुझे बताओ क्या मसला है A, B, C में? मैंने आप लोगों को बताया था that और which are interchangeable. आप मुझे बता भी कह रहे हो which क्यों नहीं हो सकता? मैंने बताया था ना that और which are बहुत resembling. You can use either of them. Usually. आप that से भी पढ़ के देखो, which से भी पढ़ के देखो. It's the same thing. To repair the damage which time, to repair the damage that time. It's the same thing. I told you guys, didn't I? That that of which are very similar. Yes, mixture is made of. It's not from. सही है? इसलिए इसका आंसर डी है. Shakil, is it clear? I told you guys about this that and which का interchangeability. Didn't I? I did ना? Yes. Okay. और जिसने A और C बोला था, उसको कोई क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ. Tell me guys ताकि मैं आप लोग की confusions को clear करूं, because एक दफा एक confusion clear होती है, if it repeats in the next question तो आपको फिर नहीं होती वो confusion. तो मुझे बता दो A और C वालों को क्या मसला था, even E वालों को. देखो ये मिक्सचर ऑफ होता है ना, मिक्सचर फ्रॉम तो नहीं होता ना. ठीक है? No one's replying. Move on to question number 10. Opponents of the act argued D is correct. Yes, option number D is correct because from is incorrect basically. Opponents of the act argued that the legislation was not only vaguely formulated and unconstitutional but also impossible to enforce in an international and virtually unregulated arena. इसका क्या आंसर होगा? Why D? Okay, why D? Okay, but यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि बट ऑल्सो इम्पॉसिबल टू इन्फोर्स इन इंटरनेशनल वर्चुअली. तो वो इन्फोर्समेंट की बात करें इन 2 टाइप्स ऑफ अरीनास, तो इसमें क्या मसला आ रहा है? ओके, सी क्यों है? ए वाले कौन कौन है? ए वाला अगर कोई है मुझे बताओ ए में क्या मसला है. इज देयर एनीवन जिसने ए बोला हो? रेज योर हैंड्स. नो वन ए. ओके, बी वालों हाथ उठाओ. आई जस्ट वांट टू हियर योर लॉजिक्स ताकि मैं आप लोग की जो कंसेप्शन को क्लियर कर सकूं. इज देयर एनीवन जिसने बी बोला था? ओके, सी. रेज योर हैंड्स if you think it's C. Okay, Mozam Ahmed Soni,
एंड ऊपर जिन्होंने भी सी बोला है, गिव मी एन एक्सप्लेनेशन कि क्यों सी है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, सी क्या है, मतलब सी में एरर क्या है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू गाइस. देखो ये तो सिनोनिम्स की बात होगी ना मौजम. इन्फोर्स, इम्प्लीमेंट, वी डोंट नो कि एक्ट क्या थी, उसको इन्फोर्स करना चाहिए, इम्प्लीमेंट, वी डोंट नो दैट. एक्स बट ऑल्सो वाई, सो एक्स एंड वाई सेम होने चाहिए. What? किसी और को सवाल समझ आया है देविका का? Yeah, am I the only one? She's saying to her, oh okay okay. यार तो ऐसे बोलो ना, मैं पता नहीं सीरियस समझ बैठी. सही है, तो यहाँ पे आंसर इज ई. हर चीज फॉलो हो रही है. ई डी इसलिए नहीं है बिकॉज हम दो तरह के रेगुलेटेड, बेसिकली बस देखो हर चीज का पैरलिज्म ऐसे नहीं आ जाता, ठीक है. तो इंटरनेशनल एंड वर्चुअली, तो दो चीजों की बात हो रही है, इसमें क्यों पैरलिज्म का मसला आ रहा है. मुझे टेल मी गाइस क्या मसला आ रहा है, ताकि मैं आप लोगों को क्लियर करूं कॉन्सेप्ट्स. इससे आपके छोटे छोटे की कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो मेक श्योर कि यू कीप आस्किंग मी जो मसले हैं. Got it. Okay, great. Moving on, question number 11. One reason that a growing number of people have no family doctor may be that fewer medical stores are choosing to train as a general practitioner. बताओ. Okay. Bhumika, why A? Okay. Emma is saying C, Bhumika is saying A. Tell me the reason why. ऐसे ही नहीं बताओ मुझे. Tell me the reason. Again मैं बता रही हूँ, मुझे तुम लोग रीजन बताओ कि क्यों 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 क्यों. ओके. सो लाइबा, आप कह रही हो कि fewer and fewer medical students are chosen as, वो कह रहे हैं, वो बेसिक क्वेश्चन तो ये कह रहे हैं ना कि यार आप फील्ड अपनी खुद सेलेक्ट करते हो ना, तो वो कह रहे हैं कि वो खुद चूज करेंगे ना, वो चूज होंगे थोड़ी. डी इज द राइट आंसर. थैंक यू आशना. व्हाई इज डी द राइट आंसर? डोंट टेल मी व्हाई इज इट. आई एम नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड until you guys tell me the logic behind your options. Okay, Shakil, why? Use why? ए में कहाँ आर यू? अच्छा, you're saying कि देखो, लेकिन यहाँ पे तो people की यूज हुई हुई है. वो growing जो है ना, वो नंबर के लिए यूज हुआ है शकील. एग्जैक्टली, प्रैक्टिशनर, थैंक यू. यहाँ पे बात हुई है शकील, देखो, वन रीजन दैट अ ग्रोइंग जो है ना, वो नंबर के लिए यूज हुआ है. पीपल प्लूरल है, और ये हैव इसके साथ है, ठीक है. यहाँ पर स्टूडेंट्स है, तो ये प्रैक्टिशनर्स होना चाहिए था, और ये अर्न होना चाहिए था. गेट इट? इट शुड हैव बीन fewer and fewer medical students are choosing to train as general practitioners, because यहाँ पे S है, तो A नहीं होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए, तो ये practitioners होना चाहिए. chosen क्यों होगा? जनरल प्रैक्टिशनर चूज थोड़ी करते हैं, हम अपनी फील्ड खुद सेलेक्ट करते हैं ना मेडिकल में. ओ, आई थॉट यू आर सेइंग ऑप्शन इज ए. क्लियर तो करो, मुझे कैसे पता चलेगा क्या बोल रहे हो. ठीक है. इज इट क्लियर ना? क्लियर गाइस, सबको समझ आ गया? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. दैट J.L. Solomon's first novel was selected for several major literary prizes, surprising to no one who had read his previous collections of short stories, poems, and essays. इसमें क्या प्रॉब्लम है? A is not the problem, guys. That से सेंटेंस शुरू हो सकता है. मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ.
that he was hurt by his mother's behavior was unacceptable to his mother. ये एक और तरीका है to say that it was unacceptable to his mother that he was hurt by her behavior. It's the same thing, but हम that sentence को start करें. इसलिए you can start a sentence by that. अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ ना तो मैं कहूंगी, जैसे अगर इसमें कोई वैसे तो एरर है नहीं, बट अगर आप लोग करें ना कि दैट सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता तो फिर ये होता कि एक मिनट, होता फिर no one who had read his previous collections of short stories, poems and essays was surprised that Solomon's first novel was selected for several major literary prizes. That is used for novel, right? That is used for the fact that his novel was selected. सही है? First novel that was selected for. Laiba, you're saying it should have been J.L. Solomon's first novel that was selected for. मैम बी में मसला है, क्या मसला है बी में शकील? You're saying selection 4 होना चाहिए, and Laiba is saying that was selected for that. Okay, listen to me. First, understand what the sentence is. Read the sentence. They're saying that Solomon's first novel was selected for several major literary prizes was surprising to no one who had read his previous collection of short stories. वो कह रहे हैं कि the fact, अच्छा अगर मैं यहाँ पे the fact लिख दूँ ना, फिर पढ़ो sentence को. The fact that Solomon's first novel was selected for several major literary prizes was surprising to no one who had read his previous collections of blah blah blah. Is it okay now? Basically उन्होंने the fact को हटा दिया है and they've just replaced it with that and they've said कि ये बात कि सोलोमन की फर्स्ट नॉवेल सेलेक्ट हुई थी वो सरप्राइजिंग नहीं थी जिन्होंने उसकी पुरानी कलेक्शंस पढ़ी हुई थी. अच्छा शकील और लाइबा आप लोगों का सवाल है मुझे एड्रेस. शकील इज सेइंग दैट वाज सिलेक्टेड भी सही है. तो यू आर सेइंग कि it could have been कि that Solomon's first novel that was selected for several major literary prizes was surprising to no one. अगर आप ये बोलते हो ना शकील तो इसका मतलब है कि आप पूरे सेंटेंस का फोकस शिफ्ट कर रहे हो ऑन हिज फर्स्ट नॉवेल, बट द फोकस ऑफ द सेंटेंस इज सिलेक्शन ऑफ हिज नॉवेल. You get it? अगर आप बोलते हो कि that J.L. Solomon's first novel that was selected for several major literary prizes was surprising, तो यहाँ पे focus shifts to the first novel. But हमारा focus is on the fact that his novel got selected, regardless of first, second, third. The fact होता तो ठीक था. Yes, ठीक था. I get it, but that से भी sentence start हो सकता है. सही है? Moving on to question number 13. Citizens protesting the planned demolition of the historic YMCA building claim that without the YMCA, many young people in town would have grown up with no access to sport facilities and no place for after-school recreation. What should be the answer? Simple, straightforward. Yes, C. Why C? Tell me the correct option. Would have. Perfect. Very easy. Many young people around would have होता. Off तो नहीं हो सकता. Obviously तो have होता, would have होता. सही है? ठीक है? Clear है सबको? We're going to do 20 of these and then we're going to end the class. ठीक है? 14 है. One question. A surprising number of fifth graders said that telling the truth, even if it meant being punished, was preferable than living with a lie. What is the correct answer in this? मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी. थैंक यू शकील. प्रेफरेबल देन नहीं होता है, प्रेफरेबल टू होता है, प्रेफरेबल ओवर होता है. ठीक है? सो इसलिए इसका आंसर डी है. यू प्रेफर समथिंग ओवर समथिंग. ठीक है? तो वाज प्रेफरेबल टू लिविंग विद अ लाई या प्रेफरेबल ओवर लिविंग विद अ लाई. ठीक है? बट टू यहाँ पे ज्यादा सेंस बन रहा है. ठीक है? Is everyone clear with this? Guys, participation down हो रही है. 617 स्टूडेंट्स रह गए, 25 थे. Is it clear to everyone?
Great. Question number 15. Though Patricia's resume was not nearly as long and impressive as the other applicant, her personal charisma was so great that Mr. Alvarez hired her on the spot. What should be the correct answer in this? Okay, C. Why C? Good eye, guys. अच्छा करो. Why should it be C? Yes, it should have been. यहाँ पे मसला क्या है? Parallelism का मसला है. यहाँ पे होना चाहिए था as that of the other applicant या the other applicants ये होना चाहिए था. ठीक है? Good going. C is the correct answer. समझ आ रहा है सबको अब? These are not difficult as long as you have a good command over your grammar and language. ठीक है? Question number 16. Under the proposed law, which may deem too harsh, any motorist convicted of drunk driving would spend 30 days in prison and lose their license for 5 years. इसका क्या आंसर होगा? D. Why D? Great. सही है. Good. मैंने जो पहले बताया था वो समझ आ गया. यहाँ पे any की बात आ रही है तो यहाँ पे his होना चाहिए. Great. Good. Good work. Question number 17. When it became apparent to Clive that no one of the remaining jurors were going to believe his client's alibi, he began to reconsider the district's attorney's offer of a plea bargain. What should be the answer in this one? Perfect. Why? Because यहाँ पे one की बात हो रही है. ठीक है? Please, right answer should be was going. Okay, guys. ठीक है? Everyone is clear on this? If we 9:15 तक करते जितने होते हैं. ठीक है? Question number 18 देखते हैं. If only the factory owners had conducted regular safety inspections of their equipment, the horrible accident of 1969 may have been averted. What is the correct answer of this? Okay. If only the factory owners had conducted regular safety inspections of their equipment, the horrible incident of 1969 may have been averted. What should be the correct answer? Might have. Exactly. Might have been averted. Might have been averted. Yes. ठीक है? इसका आंसर क्या होना चाहिए था? Might होना चाहिए था. May have नहीं हो सकता. ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर might have होगा. Okay? These are correct option. Moving on to question number 19. The symphony had not hardly begun when a group of school children who had been forced to attend began irritating the rest of the audience by talking loudly and kicking the seats. इसका क्या होगा? This is a double negative. ठीक है? Yes, Parth. Good to see you participating without me nagging. This is a double negative. ठीक है? Had not hardly. ठीक है? तो वो कह रहे easily basically. That is what they're implying. But it was a hard situation. वो कह रहे ठीक है? तो double negative है तो it should be had hardly begun. सही है? Is it clear to everyone? Guys, clear है सबको? Okay, 21 पढ़ते हैं. 20 पढ़ते हैं. नो मैम. ओके, क्या क्लियर नहीं है? नो मैम. ओके ओके ओके, मुझे बताओ ना फिर ताकि मैं बनूं. देखो हैड नॉट, देखो अगर आप बोलते हो हैड नॉट हार्डली तो व्हाट यू मीन इज कि इजीली. ठीक है? जैसे आजकल देयर इज वन थिंग जो मैं बहुत सुनती हूँ एंड दैट इरिटेट्स सो मच. बेफजूल. बेफजूल की बात ना करो. सही है? बेफजूल का मतलब है इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कोई. बट द पीपल हु यूज इट दे थिंक इसका मतलब है फजूल की बात ना करो. बेफजूल बात ना करो. यू मीन जरूरी बात ना करो. ठीक है? दैट इज अ डबल नेगेटिव. सो इफ मैं कह रही हूँ कि द सिम्फनी हैड नॉट हार्डली, इसका मतलब है इजीली.
हार्ड नहीं था मतलब इजी था, ठीक है. यस इट्स बाफ, बेफजूल कुछ नहीं होता. आई डोंट नो व्हाई पीपल यूज इट, इट इरिटेट्स मी सो मच, ठीक है. सो इसलिए दिस इज अ डबल नेगेटिव. आप इसको बोलोगे द सिम्फनी हैड हार्डली बिगन, सही है, या हैड नॉट इजीली तो नहीं, हैड हार्डली होगा, ठीक है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. The gods of Greek mythology, who were neither omniscient nor particularly ethical, amused themselves by taking on disguises and meddling in the affairs of immortals. What should be the correct answer? Okay, why D? Okay, nor ethical, nor okay, Shakil, I can see your responses. तीन दफा लिख दिए, nor ethical, nor ethical, nor ethical. I get it, but you're saying कि we're neither omniscient nor particularly ethical. क्यों, क्या मसला nor particularly मतलब what's the problem in this? D बोल रहे हो, Devika is saying D. Why D? C, okay, why C? Tell me. Shakil, nor particularly ethical में क्या मसला है? Yes, is the right answer. सब you guys, you listen to me saying कि क्यों क्यों, and then जब मैं नहीं बोलती तो फिर आप लोग बोल देते हो ये वाला ऑप्शन है जो मैंने बोला नहीं होता. क्या मुझे बताओ, C और D और B वालों, why is it that? क्यों नहीं है आंसर? Equal right and left side of hand. क्या? Disguise. अच्छा, you're saying कि इधर से disguises की बात हुई थी और यहाँ पर इतनी बड़ी बात हुई है. That is what you're saying. That okay, that is what you're saying. देखो, पैरेललिज्म का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपका एक कॉन्सेप्ट छोटा है तो दूसरा भी छोटा ही होगा. एज लॉन्ग एज दोनों में बात सेम हो रही है, एज लॉन्ग एज अ सेंटेंस इज पैरेलल, इट्स राइट. यहाँ पर उन्होंने बात की है. ओके चलो मैं आप लोगों को बोलती हूँ. आई एम सॉरी बट मेरे दिमाग में एग्जाम्स और स्टडीज की बात बहुत आ रही थी जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, हेंस तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि द रीजन यू फेल्ड वाज you did not study and you wasted a lot of your time in your in the Arsenal versus Manchester match that was airing on this date. Do you get it? बहुत बड़ा difference है, but it's parallel. ठीक है? Get it? Parallelism है, but पहले सिर्फ 3 words है और बाद में इतना बड़ा sentence है. Because you did not study, 3 word, and you were wasting your time watching the Arsenal versus Manchester, blah blah. No offense to any football fans. ठीक है? Just an example, ठीक है. So this is parallelism, इसमें agree कर रहा है, but the thing is कि sentence की length matter नहीं करती as long as parallelism is there. Does that make sense to you? समझ आ रहा है देविका? Okay, great. Question number 21 कर लेते हैं. Fast food chains are among the most okay, what this word? I'm reading this for the first time. Fast food chains are among the most blah blah restaurants in our town. They welcome everyone with no distinction between you and me, teachers and students, or parents and kids. What is the correct option? D. Yes, obviously you and me does not make sense. Between anyone होना चाहिए. Is that what you're saying, Hassan? कि between anyone होना चाहिए? You and I होना चाहिए. Oh, okay. But ऊपर तो हमने क्या था यहाँ पर, ये देखो. Question number 5 if I recall, 4 था. यहाँ पे तो हमने I को मी कन्वर्ट कर दिया था. फिर अब आप मी को आई क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? ओके सही है, तो ये तो एरर नहीं है, ठीक है. ओके लाइबा, दोनों लाइबा ने कुछ कहा है. वेट, लाइबा अली इज सेइंग अमंगस्ट होना चाहिए था, बट अमंग इज फाइन टू राइट, कोई मसला नहीं लग रहा मुझे अमंग में. और लाइबा अशरफ इज सेइंग आर द मोस्ट. ओके लाइबा आप जो कह रही हो ना, देखो लेट मी टेल यू. इफ आई से लाइबा एंड सवेरा आर अमंग द मोस्ट, are among the best students of my class. That means और भी best student थे, and but Laiba and Savera are among them. If I say Laiba and Savera are the best students of my class, that means only 2 of them are. जैसे आपने ये सुना होगा ना कि
Burger Clock is one of the most famous chain in Karachi, one of the most. और भी है but उसमें से, ठीक है? Is it clear now? तो इधर ये एरर नहीं है. We don't know कि fast food chains सिर्फ है वो among the most blah blah restaurants है, ठीक है? Get it? Library, is it clear? I need a response. Okay, why not D? Why D? Tell me. Me to use verb है ना. मैं आपको ये कह रही हूँ कि he will not differentiate between you, me, my mother, my father, blah blah. So that is not wrong. B. Okay. So up at this point, you guys are just guessing. Why B? Tell me. Welcomed. They welcomed everyone. यहाँ पे तो I की बात हो रही है. So why welcomed? ये I है तो फिर welcomed क्यों होना चाहिए? So it's E. Yes. Okay, we're going to do one last one and then we're going to end the class. ठीक है? Like other gourmet restaurants, Mr. Yeah, Muhammad, I don't know. I think it's Mr. Du Bois creates magnificent meals in which he likes to use only the finest ingredients. इसमें क्या होना चाहिए था? Okay, C. Why C? Okay, Devika says A. मैं नहीं बता रही, मुझे आप लोग बताओगे why A and why C. Because this is the last question, so let's see. C, it's a restaurant in which he likes. खाना तो वही बना रहे हैं ना, restaurant थोड़ी खाना बना रहे हैं. That modifiers is incorrect. Thank you, Devika. Genius. A is the correct answer. ठीक है, why? यहाँ पे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? Tell me guys. अभी पढ़ा है हमने बिल्कुल. I think 2 दिन पहले. कौन सा रूल वायलेट हो रहा है यहाँ पर? Thumb rule. It was a touch rule. ठीक है? Like other gourmet restaurants. यहाँ पे restaurants की बात होगी. Is Mr. Du Bois a restaurant? He's not. What could have been? It could have been like other gourmet restaurant owners. या फिर like other gourmet restaurants. The restaurant which Mr. Du Bois owns create ऐसे करके होना चाहिए. Get it? तो यहाँ पे owners या chefs या whatever ये होना चाहिए. ठीक है? सही है? समझ आ गया सबको? Is it clear, guys? Great. Okay, so I'm going to end the class now. ठीक है? Hopefully सबको सब समझ आ गया था. I think this was a good class. ठीक है? So I'm going to end it now. I love this.